فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میرا نام سیدہ راحہ کاظمی ہے اور آج ہم جس پارٹ کی ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ ہے پارٹ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 124 ہے اور عنوان ہے 3297 پہ عنوان کا نمبر شمار ہے اور اس سلسلے کا یہ 8واں عنوان ہے۔ فی قرآن علم الاولین والآخرین، قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ اس سلسلے کی جو احادیث اس میں پیش کی جا رہی ہیں وہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کرتی ہوں اور بیچ میں ہی اس میں گزشتہ جو ہمارا موضوع تھا اس کا حاشیہ جو ہے وہ اسی پیج پہ 125 پر بیان کیا جائے گا، تو وہ جب ہم اس کو وابستہ کریں گے تو میں وہ لائن آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ ابھی ہم آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ 16146 پر قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں، تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے احکام موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 220 ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 313 ہے۔ 16147 پہ جو حدیث ہے، یاد رکھو کہ اس قرآن میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ واقعات، بیماریوں کا علاج اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158۔ 16148 پر جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث نمبر 2454۔ 16149 پہ جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے اور اس کے معنی میں غور کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث نمبر 2454۔ اب اس میں پیج نمبر 125 پہ حاشیے میں جو ریفرنس لکھا ہوا ہے وہ ہمارے 2 صفحہ پیچھے جو موضوع تھا اس سے متعلق ہے کہ قرآن ہر زمانے میں نیا ہے، اور اس میں یہ لائن تھی کہ لہٰذا یہ ہر زمانے میں جدید، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں 2 صفحے چھوڑ کے ابھی جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں اس صفحے کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہوا ہے آئیں اسے پڑھتے ہیں کہ یہ تو اس کتاب میں ہے اور اصل کتاب میں ہے۔ اور یعنی الف واو عین رے، اور اپنی طرف سے کسی بھی چال و رفتار کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر کرنے میں بابصیرت دلوں کی حیات ہے، لیکن بہتر وہی ہے جو کافی جلد 2 صفحہ نمبر 599 پر ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھلانی دے اور اپنی نظر کو وہاں تک پہنچائے، کیونکہ غور و فکر سے کام لینا بابصیرت دلوں کی زندگی ہے۔ یہ حاشیہ نمبر جو یہ 1 تھا اس میں یہ اس کے بارے میں تحریر تھا۔ 16150 پر ہم اپنی حدیث پر واپس آتے ہیں اور ہمارا موضوع جو ابھی چل رہا ہے قرآن کے سلسلے میں، قرآن نے اولین و آخرین کا علم ہے، اس سے متعلق حدیث
16,150 पे। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके बारे में दो आदमी इख्तलाफ करें और इसकी असल खुदावंद अज़्ज़ा व जल की किताब कुरान में ना हो, लेकिन वहाँ तक लोगों की अक्लों की रसाई नहीं हो सकती। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम काफ़ी की जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 60 है। कौल मौलिफ मुलाहिज़ा व इमामत और बाब है मेरे पास अवलीन व आखरीन का इल्म है। 3298 पर मौजू नंबर 9 है तअल्लुमुल कुरान, कुरान की तालीम हासिल करना। 16151 पर मोमिन को चाहिए कि मरने से पहले कुरान की तालीम हासिल करे या अगर उसे मौत आए तो वो कुरानी तालीम हासिल कर रहा हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 है और सफ़ा नंबर 189 है। 16152 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा कुरान दावत इलाही का दस्तरखान है, जितना हो सके इस दस्तरखान से रीज़ा चीनी कर लो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19। 16153 पर यकीनन ये कुरान दावत इलाही का दस्तरखान है, मकदूर भर इससे इल्म हासिल करो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 2356। 16154 पे कुरान का इल्म हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है, इसमें गौर व फिक्र करो कि ये दिलों की बहार है और इसके नूर से शिफा हासिल करो कि सीनों के अंदर छुपी हुई बीमारियों के लिए शफा है। इसकी खूबी के साथ तलावत करो कि इससे सब वाक़यात से ज़्यादा फ़ायदा रसा हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 36 है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 110। 16155 पर हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। अगर तुम सआदत की ज़िंदगी, शहादत की मौत, हसरत यानी क़यामत के दिन की निजात, धूप के दिन को साया और गुमराही के दिन के लिए हिदायत के तलबगार हो तो कुरान का दर्स हासिल करो, क्योंकि ये रहमान का कलाम है, शैतान से बचाता है और मीज़ान आमाल में झुकाव का मूजिब है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 92 सफ़ा नंबर 19। 16156 पर जो हदीस है, ए माज़, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सआदत की ज़िंदगी, शहादत की मौत, हशर के दिन निजात, खौफ के दिन अमन, तारीकी के दिन नूर, धूप के दिन साया, प्यास के दिन सैराबी, मीज़ान के हल्का होने के दिन संगीनी और गुमराही के दिन हिदायत मिले तो कुरान का दर्स हासिल करो, क्योंकि ये रहमान ज़िक्र, शैतान से बचाव का ज़रिया और मीज़ान अमल में झुकाव का मूजिब है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस नंबर है 2439। 16157 पे तुम में बेहतर वो है जो खुद भी कुरान का इल्म हासिल करते हैं और दूसरों को भी इसकी तालीम देते हैं। हज़रत रसूल अकरम की बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 है और सफ़ा नंबर 186 है। 16158 पर तुम्हें बेहतर इंसान वो है जो खुद भी कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को भी इसकी तालीम दे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 2351। 16159 पे तुम्हें बेहतर शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 2354। 16160 पे हदीस, जो शख्स हमारे दोस्तों और शियों में इस हालत में मरता है कि इसे कुरान अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता तो उसे कब्र में इसकी तालीम दी जाएगी, ताकि इस तरह अल्लाह ताला इसके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि बहिश्त के दर्जात कुरानी आयात की तादाद के मुताबिक है और वहाँ कुरान के कारी से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 है और सफ़ा नंबर 188 है। 16161 पे कुरान पढ़ने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और बहिश्त के दर्जात पर चढ़ता जा, इसकी तरतील के साथ इस तरह तलावत कर जिस तरह दुनिया में किया करता था, इसलिए कि तेरी मंजिलत इस आखिरी आयत पर जाकर ख़त्म होगी जिस पर तू कुरान को ख़त्म करेगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस 2330। अब आ जाए 16162 पर हदीस का तर्जुमा। जब कुरान पढ़ने वाला बहिश्त में दाखिल होगा तो उसे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा, ऊपर चढ़ता जा
بس وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ اوپر چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی پڑھ ڈالے گا جو اسے یاد تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 2331 16163 پر تمہارے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت ضروری ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 2368 16164 پہ کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد سے لوگوں کے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہی لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین افراد ہیں۔ کنز العمال حدیث 4025 قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 185 باب ہے 20۔ 3299 پہ موضوع نمبر 10 ہے تعلیم القرآن یعنی قرآن مجید کی تعلیم۔ 16165 پر جو شخص کسی کو قرآن پڑھاتا ہے وہ اس کا آقا بن جاتا ہے، لہذا قرآن پڑھنے والا اسے نہ تو کسی موقع پر تنہا چھوڑے اور نہ ہی اس پر فوقیت جتائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 2382 16166 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص کسی بندے کو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تعلیم دیتا ہے وہ اس کا آقا بن جاتا ہے، لہذا قرآن کا علم حاصل کرنے والا نہ تو کسی موقع پر اسے تنہا چھوڑے اور نہ ہی کبھی اس پر فوقیت جتائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسلام کے مضبوط سہاروں میں سے ایک سہارے کو توڑ ڈالے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2384 16167 پہ حدیث کا ترجمہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کی یاد اس ذات کے پاس ہوتی ہے جس کے حضور یہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2320 16168 پر حدیث کا ترجمہ، یاد رکھو جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے، دوسروں کو اس کی تعلیم دے اور اس پر عمل بھی کرے تو میں اسے بہشت کی طرف لے جاؤں گا اور بہشت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 2375 16169 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا دلاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ایسا ہار ڈالا جائے گا جس سے اولین و آخرین کے لوگ تعجب کریں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2386 16170 پہ ترجمہ، بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے، اچھے اخلاق و آداب سے اسے آراستہ کرے اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 399 16171 پہ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 2452 3300 پہ موضوع نمبر 11 ہے حفظ القرآن قرآن مجید کا حفظ کرنا۔ 16172 پر اللہ تعالیٰ جسے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے اور وہ یہ گمان کرے کہ کسی اور شخص کو اس سے بہتر نعمت عطا کی گئی ہے تو وہ اللہ کی افضل ترین نعمت کی ناشکری کرے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 2317 16173 پر تم ان معلق مصاحب سے غفلت نہ برتو کیونکہ جو دل قرآن کو اپنے اندر جگہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2400 16174 پر حدیث کا ترجمہ، جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 2478
16,175 पर तर्जुमा। कुरान का हाफिज और इस पर अमल करने वाला उन लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा जो बुजुर्ग और नेकोकार हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 96 है, सफ़ा नंबर 177 है। काफ़ी की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 603 है। 16176 पर हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। हम्माद बिन ईसा ने सनद मरफू के साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हज़रत ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ तालीम ना दूं जिससे तुम कुरान को कभी ना भूलोगे? वो ये दुआ है। तर्जुमा। इस दुआ का तर्जुमा पढ़ते हैं। ए अल्लाह, जब तक तू मुझे जिंदा रखे हमेशा के लिए मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करके मुझ पे रहम फरमा। जो चीज़ मेरे लिए मुफीद नहीं है इसके हसूल से बाज रख, मुझ पे रहम फरमा। जिस चीज़ में तेरी रजामंदी है इसमें हुस्न नज़र इनायत फरमा। जिस तरह तूने मुझे तालीम फरमाया है इसी तरह अपनी किताब को याद करने के लिए मेरे दिल को पाबंद बना। मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं इसे वैसे ही पढूं जैसे तेरी रज़ा है। बारे इलाहा, मेरी गुनाहों को अपनी किताब के साथ मुनव्वर फरमा। उसके ज़रिए मेरे सीने को कुशादा कर दे। मेरी ज़बान को इसकी तिलावत के लिए रवां फरमा। मेरे जिस्म को उसी के लिए इस्तेमाल कर और उसके लिए मुझे क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। इसके लिए मेरी इमदाद फरमा क्योंकि इस पर सिर्फ तू ही मेरी इमदाद कर सकता है। तेरे अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 और सफ़ा नंबर 209। अगली हदीस पे आ जाएं। 16177 इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। इब्ने सदका हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि वो अपने आबा व अजदाद अलैहिमुस्सलाम से रिवायत करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की दुआ है कि ए अल्लाह, जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा के लिए मेरे गुनाहों के तर्क करने के ज़रिए मुझ पे रहम फरमा। जिस चीज़ में तेरी रज़ामंदी है इसमें मुझे हुस्न नज़र इनायत फरमा। जिस तरह तूने मुझे तालीम फरमाया है मेरे दिल को अपनी किताब याद रखने का पाबंद बना और मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं इसे इसी तरह पढूं जिसमें तेरी रज़ामंदी हो। ए अल्लाह, अपनी किताब के ज़रिए मेरी निगाहों को मुनव्वर फरमा। इसी के ज़रिए मेरे सीने को कुशादा कर दे। मेरे दिल को वसी या मसरूर कर दे। इसके लिए मेरी ज़बान को रवानी दे। मेरे जिस्म को उसके लिए इस्तेमाल फरमा और इस बात पर मुझे क़ुव्वत और ताकत अता फरमा क्योंकि क़ुव्वत और ताकत तेरे सिवा किसी और के पास नहीं है। करबुल असनाद की जिल्द नंबर 5 थी और सफ़ा नंबर 16। कौल मौलिफ मुलाइज़ा व कंजुल अमाल जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 411 है। हिफ्ज़ कुरान की नमाज। कंजुल अमाल की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 58 है। हिफ्ज़ कुरान की नमाज में अल तरगीब व अल तरहीब है और जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 360 है। हिफ्ज़ कुरान की दुआ। अब अगले मौजू पे चलते हैं। 3301 पे इस सिलसिले का ये 11वां मौजू है। इस्तज़कारुल कुरान, यानी कुरान को बार बार पढ़ने की तरगीब। इस सिलसिले में 16178 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा, कुरान मजीद को बार बार पढ़ो क्योंकि ये बिदक कर भाग जाने वाले जानवरों की मानिंद है और लोगों के दिलों से इस तरह जल्दी निकल जाता है। ऊंट भी घुटने को बांधे जाने वाली रस्सी से इतनी जल्दी नहीं निकल पाता। तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि मैं फलां आयत भूल गया हूँ, बल्कि ये कहे कि फलां आयत भुला दी गई है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस नंबर 2850। अगली हदीस पे आ जाएं। 16179 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा, किसी शख्स का ये कहना कि उसने फलां आयत भुला दी बुरी बात है, बल्कि वो भुला दी जाती है। लिहाजा कुरान को बार बार पढ़ा करो क्योंकि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कुरान लोगों के दिलों से इस कदर जल्दी निकल जाता है कि ऊंट भी अपने घुटने की रस्सी से इस कदर जल्दी निकल कर नहीं भागता। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस नंबर
2849 थी ये। अगली हदीस पे आ जाएं 16180 पे। जो शख्स कुरान को बार बार और रात दिन पढ़ता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास ऊंट हो, अगर इसे घुटने से रस्सी के साथ बांध देता है तो मौजूद रहता है, और अगर इसे खुला छोड़ देता है तो भाग जाता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल हदीस नंबर 2854। 16181 पर हदीस का तर्जुमा। जो शख्स कुरान मजीद की कोई सूरत भुला देगा तो वो सूरत क़यामत के दिन एक ज़ेबा शक्ल में इसके सामने आ जाएगी जो जन्नत के बुलंद दर्जे पर होगी। वो शख्स इसे देख कर कहेगा, तू कौन है और किस कदर हसीन है, काश तू मेरी होती। वो सूरत जवाब देगी कि क्या तू मुझे नहीं पहचानता, मैं कुरान मजीद की वही सूरत हूँ जिसे तूने भुला दिया था। अगर तू मुझे ना भुलाता तो मैं आज तुझे इस बुलंद मुकाम व मर्तबे पर ले आती। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 607। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो वसाइल शिया जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 845 है, बाब नंबर 12 है। कंज़ुल अमाल की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 615 है। काफ़ी की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 576 है। 3302 पर इस मौजू का 13वां मौजू है कुरान मजीद के सिलसिले का। हमलतुल कुरान, हामिलीन कुरान के फ़ज़ाइल। हामिलीन कुरान से मुराद वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। अस मुतरज्जिम। अब आए इस सिलसिले की अहादीस शरीफ का मुताला करते हैं। 16182 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा। हामिलीन कुरान रहमत खुदाबंदी में घिरे हुए और नूर इलाही की चादरों में मलबूस होते हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामुल अख़बार 115 सफ़ा नंबर 202। 16183 पर हदीस हामिलीन कुरान क़यामत के दिन बहिश्त के आरिफ लोग होंगे। हज़रत रसूल अकरम कंज़ुल अमाल हदीस नंबर 2288, 2289 और 2290। 16184 पर इस हदीस का तर्जुमा। हामिलीन कुरान बहिश्त के आरिफ लोग होंगे, राह खुदा में जिहाद करने वाले उनके कायद होंगे और अल्लाह के रसूल तमाम अहले बहिश्त के सरदार होंगे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसदरुल वसाइल जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 7 है और हदीस है 12275। 16185 पर हदीस का तर्जुमा। मेरी उम्मत के अशराफ हामिलीन कुरान और आबिदाने शबे जिंदादार हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हिसाल जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 7 बाब नंबर 21। 16186 पर कुरान पढ़ा करो, इसे अपना हामियों पुश्तबान समझो। दोबारा पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ा करो और इसे अपना हामियों पुश्तबान समझा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे दिल को अजाब में मुब्तला नहीं करेगा जो कुरान का ज़र्फ हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जामिउल अख़बार सफ़ा नंबर 115 और सफ़ा नंबर 205। 16187 पर हदीस का तर्जुमा। शुहदाए उहद के दफन के मौके पर फरमाया, देखो उनमें से जिसके पास कुरान ज्यादा इकट्ठा था उसे कब्र में इसके साथ से आगे दफन करो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल माल हदीस 2989। इस सिलसिले की आखिरी हदीस 16188 पर जो कुरान को इकट्ठा करे यानी जामिउल कुरान बने, अल्लाह ताला इसे मरते दम तक इसकी अकल से फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। ये मौजू अभी हमतुल कुरान यानी हामिलीन कुरान के फ़ज़ाइल यहाँ पर ख़त्म हुआ। सफ़ा नंबर 137 पर हम इस पार्ट का इख्तिताम करते हैं। अभी किताब मिज़ानुल हिकमत जिल्द नंबर 8 जारी है। अगले पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे।